નમસ્કાર, પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ શોમાં હું ધ્વની આપનું સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, લોકડાઉન જેવો કપરો સમય ચાલી રહ્યો છે ત્યારે આ લોકડાઉનના સમયગાળામાં અમે ખાસ કરી વિવિધ કહી શકાય કે રમતોમાં ચેમ્પિયન રહેલા અને માસ્ટર રહેલા એવા ખેલાડીઓ સાથે આપની મુલાકાત કરાવતા હોઈએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાની છે ફેન્સિંગની, એટલે કે તલવારબાજીની. આમ તો આ શબ્દની સાથે જ આપણે એક રોમાંચ અનુભવતા હોઈએ છીએ અને સાથે જ અહીંયા સાહસનો અનુભવ પણ થતો હોય છે. અહીંયા ક્રિકેટ, બેડમિન્ટન, ટેનિસ કરતાં ઓછી લોકપ્રિય આ એક એવી વ્યક્તિગત રમત છે અને આજે આપણે તલવારબાજી વિશે ચર્ચા કરવાની છે. થોડુંક તેના વિશે જણાવી દઉં તો ભારતમાં વર્ષ 1974માં ફેન્સિંગ એસોસિએશન બન્યું અને વર્ષ 1997માં ભારત સરકાર દ્વારા તેને માન્યતા મળી છે. ત્યારે આ રોમાંચક રમતની ચર્ચા કરવા માટે, તેની પર વાતચીત કરવા માટે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગથી જમ્મુથી આપણી સાથે ઇન્ટરનેશનલ ફેન્સિંગ ખેલાડી અને ફેન્સિંગ ક્ષેત્રે મહત્વનું કામ કરી ચૂકેલા એવા વિક્રમસિંહ જામવાલ હિંમતનગરથી જોડાયા છે અને ઇન્ટરનેશનલ ફેન્સિંગ ખેલાડી કોચ અનિલ ખત્રી એ પણ આપણી સાથે હિંમતનગરથી જોડાયા છે અને સાથે વિક્રમસિંહ જામવાલ એ જમ્મુથી જોડાયા છે. સાથે સ્પોર્ટ્સ એક્સપર્ટ અશોક મિસ્ત્રી છે. તમામ મહેમાનોનું સ્વાગત છે. થેન્ક યુ. અશોકભાઈ, આજે તલવારબાજીની આપણે વાત કરવાના છે. જે રીતે મેં કહ્યું કે આ શબ્દમાં જ ઘણું સાહસ રહેલું છે અને વર્ષો જૂનો આપણો ઇતિહાસ પણ રહેલો છે. રાજા રજવાડાના સમયથી ઘણા બધા યુદ્ધો પણ થયા છે. ત્યારે આ ફેન્સિંગની રમતમાં ભારત આખરે ક્યાં છે? ક્યાં જોઈ રહ્યા છો તમે ભારતને આ રમતમાં? ભારતની રમત સાથે સંકળાયેલા રહેવાનું કામ તો વર્ષો જૂનું, રામાયણ અને મહાભારતથી તલવારબાજીની વાત આપણે સાંભળતા આવીએ છીએ અને એ અત્યાર સુધી ચાલુ છે. જ્યાં સુધી રમતની વાત છે, કારણ કે રમત જ્યારે એક વસ્તુ ઐતિહાસિક હોય ત્યાર પછી એને રમતમાં પરિવર્તિત કરે એટલે ત્યાર પછી અમુક નિયમોના માળખામાં એને એ કરવામાં આવે. ત્યાર પછીની જે પરિસ્થિતિઓ છે એમાં કદાચ ભારત અત્યારે વર્લ્ડ લેવલે ફેન્સિંગમાં બહુ મોટું નામ ના કરતું હોય, પણ તે છતાંય ઇન્ટરનેશનલ લેવલે આપણા એવા અમુક ખેલાડીઓ છે, જેમ હમણાં ભવાની દેવીની વાત કરો તો એવા એક ખેલાડીઓ છે કે જે ઇન્ટરનેશનલ લેવલે ભારતનું નામ ઊંચું કર્યું છે. ખાસ કરીને ફેન્સિંગનો એક તો સૌથી પહેલા તમે સાચી વાત કરી કે ભાઈ આ ક્રિકેટ નથી, બેડમિન્ટન નથી કે ટેનિસ નથી કે જે બહુ જ લોકપ્રિય હોય, પણ તે છતાંય અત્યારના તબક્કે જે રીતે રમત આગળ વધી રહી છે, હું માનું છું કે ઇન ફ્યુચર વી વિલ ડેફિનેટલી હેવ સમ સ્ટેક. ઓફકોર્સ આપણું રેન્કિંગમાં ઘણું બધું સ્થાન પાછળ છે, એટલે એવી રીતે જોવા જઈએ તો અલગ વાત છે. રમતના વિકાસની જો વાત કરું તો અત્યારના તબક્કે જે સરકારી પ્રયત્નો થયા છે, જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બની રહ્યું છે, ક્યાંક ને ક્યાંક ફેન્સિંગની રમત પણ મુખ્ય હરોળમાં આવી શકાય તેવી શક્યતા છે. ધ્વની. बिल्कुल. कर्नल विक्रम जी, आपके पास आना चाहूंगी. आप फेंसिंग के और अगर फेंसिंग की बात की जाए तो काफी गौरवशाली इतिहास रहा है. खेल के तौर पे आप फेंसिंग को हिसाब से देख रहे मैम देखिए, फेंसिंग एक ऐसा खेल है, जैसा अशोक जी ने भी बोला है कि ऐतिहासिक रूप से भारत की परंपरा है ये. अगर आप समझते हैं कई सालों से, सदियों से हमारा इतना प्राचीन कल्चर है कि हमारे 10,000 12,000 रामायण महाभारत काल का अगर आप पुरातत्वविदों के हिसाब से पूछें तब से चला रहा है. भारतीय इतिहास में एक बड़ी चीज रही है कि जो भी हमारा इतिहास है हम उसको कभी लिखते नहीं थे. जो लिखा गया था वो बर्बाद कर दिया गया था या तबाह कर दिया गया था इन्वेडर्स के द्वारा. तो हमारी जो भी परंपराएं हैं वो हमें शब्दों के थ्रू, फोकलोर गानों के थ्रू बताई गई हैं. अगर आप ऐतिहासिक तौर पे अपने भारतीय संस्कृति के किसी भी राज्य में चले जाएं और सुने तो देखें कि शस्त्रों का, योद्धाओं का और तलवार का एक बहुत बड़ा संबंध है हमारे कल्चर से. तो जैसे अशोक जी ने कहा है, मुझे थोड़ी थोड़ी गुजराती समझ आती है कि हमारा तलवार के साथ पुराना रिश्ता है और ये एक ऐसा खेल है जिसमें भारत हमेशा से, हमारी जड़ें हैं इसमें, हम इसकी पेरेंटेज क्लेम कर सकते हैं. और आने वाले टाइम में 2024 या 2028 ओलंपिक्स में आप देखेंगे कि हमारे खिलाड़ी अच्छा करेंगे. बहुत सी चीजें चल रही हैं गवर्नमेंट लेवल पे, बहुत सी चीजें राज्य स्तर पे चल रही हैं. इनफैक्ट आप गुजरात में देखिए, गुजरात गवर्नमेंट ने इतना अच्छा मॉडल बनाया है फेंसिंग की डेवलपमेंट के लिए, जो कि एक सराहनीय मॉडल है. और इनफैक्ट मैं थोड़े दिनों पहले पढ़ रहा था, गुजरात गवर्नमेंट का 750 करोड़ के आसपास का स्पोर्ट्स का बजट है एनुअल.
750 करोड़, और उसमें से मैक्सिमम जो स्पोर्ट्स बजट है मेरे हिसाब से वो फैसिलिटीज या इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में जा रहा है। तो फेंसिंग के इतिहास से गुजरात और भारत एक सही दिशा में जा रहे हैं। नया खेल है, बहुत प्रतिभावान खेल है, बहुत रुचि है, बहुत प्रतिभा है हमारे पास, बहुत टैलेंट है। आप आने वाले समय में देखिएगा कि क्या क्या कुछ हम इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल में हम भारत अर्जित करने में सफल होगा। जी बिल्कुल। अनिल खत्री जी, आपसे जानना चाहूंगी, आप भी एक कोच है, बच्चों को तैयार करने में आपकी भी अहम भूमिका रही है। कितने कमिटेड बच्चे हमें देखने को मिलते हैं फेंसिंग की अगर हम बात करें तो, और साथ में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फेंसिंग में फेंसिंग को एक खेल मान के कितनी रुचि हमें देखने को मिलती है बच्चों में। हाँ जी, देखिए फेंसिंग एक रुचि और जो पोटेंशियल दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां तक रुचि की बात है, हम इसको ऐसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि रुचि में एक प्लेयर को हम एक ना सेशन टाइम देते हैं, अपना कोई टास्क देते हैं, और प्लेयर जैसे टाइम पे हम 5 बजे टाइम से आधा घंटा पहले आके बैठ जाते हैं प्लेयर वहां पे। उनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि जल्दी से हम आए, कुछ सीख के जाए, और वो लंबे टाइम तक उसी एनर्जी से पूरा सेशन में ट्रेनिंग करते हैं और सीख के जाते हैं वहां से। और उसके बाद उनके क्वेश्चंस होते हैं, सर कल हम क्या सीखेंगे, कल हम क्या नया करेंगे, है उनका मोटिव, उनका जो एनर्जी लेवल कम नहीं होता लास्ट टाइम तक। इसको हम बोलते हैं रुचि कितनी ज्यादा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 2017 में मैंने यहाँ सेंटर शुरू किया था हिम्मत नगर में। तब मेरे पास कोई प्लेयर नहीं था, मैंने स्कूल से कुछ 10 प्लेयर निकाले थे आइडेंटिफाई करके। उन 10 प्लेयरों से मैंने शुरू किया था यहाँ पे फेंसिंग, और 10 प्लेयरों को मैं उनको 3 महीने 6 महीने मैंने ट्रेनिंग दी, उनको स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल उनको पार्टिसिपेट कराया है। और उन बच्चों को देख के जब वो वापस आए हैं खेल के, दूसरे बच्चे भी मोटिवेट हुए हैं, वो आए हैं फेंसिंग में करने के लिए। है? आज के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 50 स्टूडेंट है और सेम एनर्जी के हैं, उनमें इतनी ज्यादा रुचि है, वो टाइम से पहले आके बैठते हैं ग्राउंड पे, आधा घंटा पहले आते हैं और पूरे सेशन में सेम एनर्जी से ट्रेनिंग करते हैं। और उनको देख के दूसरे मोटिवेट बच्चे और भी हैं लाइन में खड़े हुए। मेरे पास अंडर 10 से लेकर अंडर 17 तक के बच्चे हैं, उनमें स्टेट में मेडल्स भी, उनके नेशनल में भी है। और मैं बताता हूँ, मैं मानता हूँ सेशन मेरा 2.5 घंटे का होता है, बच्चे बोलते नहीं सर आधा घंटा और कर ले, सर आधा घंटा और कर ले। इससे मुझे पता लगता है उनमें कितनी रुचि है, कितना इंटरेस्ट है बच्चों में। और दूसरी बात है इनकी पोटेंशियल तो मैं बताता हूँ, गुजरात के बच्चों में बहुत पोटेंशियल है। हमने पिछले 4 साल में देखा है, हमारे बच्चे इंटरनेशनल पे मेडलिस्ट भी हैं, पार्टिसिपेशन भी है, और नेशनल लेवल पे भी हर कैटेगरी में मेडल है। हमारे अंडर 10, 12, 14, 17, 20 जूनियर, हमारे हर कैटेगरी में मेडल है और इंटरनेशनल में गए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं आने वाले 4-5 साल में गुजरात इंडिया में पहले 2-3 स्टेट में होगा, ये मेरा मानना है। और हम मेहनत भी कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे कोचेज हैं, स्टाफ इतना अच्छा है एसएजी का, जो फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इतना सपोर्ट कर रही है, स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, प्लेयर हमारे बहुत टैलेंटेड है, पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे। और वो जो हमारे अंदर ना, आप मानते हो कुछ सपना होता है हर प्लेयर के अंदर, कोच के अंदर, मैं टॉप लेवल तक जाऊं। जो हमारा सपना है, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों में ट्रांसफर करूं, वो जरूर कुछ ना कुछ ओलंपिक लेवल पे करके आए। जी બિલકુલ અશોકજી, આવનારા સમયમાં જે રીતે અહીંયા અનિલ જે વાત કરી કે ગુજરાતને તેઓ ફેન્સિંગમાં ખૂબ જ આગળ જોઈ રહ્યા છે, પ્રથમ 3 સ્ટેટમાં તે સ્થાન જોઈ રહ્યા છે ગુજરાતનું। અહીંયા ખાસ કરી અને ઇન્ડિયા લેવલે તો ફેડરેશન સારું કામ કરી રહ્યું છે, પરંતુ જો ગુજરાતની વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં ખાસ કરી અને એસોસિએશન કેટલું ઇનિશિયેટિવ લઈ રહ્યું છે અને કેટલી કામગીરીઓ થઈ રહી છે? બેઝિકલી તમે કોઈ પણ રમતના વિકાસ માટે એનું એસોસિએશન અને એના વ્યક્તિઓ એની સાથે જે સંકળાયેલા છે એ એન્થુઝિયાસ્ટ હોવા જોઈએ, એમની પાસે એનર્જી હોવી જોઈએ કે દે વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ ફોર ધ પીપલ। હું માનું છું કે આ જે પર્ટિક્યુલર સ્પોર્ટ છે ફેન્સિંગની છે, એના માટે ગુજરાતમાં તમે નહીં માનો કે મેં ભરતજી કરીને એક સેક્રેટરી છે એમના, મેં એમને વાત કરી કે આ રીતના મારે કરવું, હી વોઝ ઇમિડિયેટલી કીન ઓન ગિવિંગ વિથ ધ નંબર્સ અને બધાના એ કરવા માટે। સો ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુ જરૂરી છે કે એસોસિએશન જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ આ પર્ટિક્યુલર રમત ઉપર વાત કરવા માંગતું હોય તો દે ઇમિડિયેટલી
રિસ્પોન્ડ ટુ ધેમ. હું માનું છું કે ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ. અને એટલા માટે હું કહી શકું, જે રીતે અનિલજીએ વાત કરી અથવા તો જે રીતે વિક્રમજીએ વાત કરી, એની સાથે સાથે ખાસ કરીને સપોર્ટ આ હોવો જરૂરી છે કે જ્યારે કોઈ આ પર્ટિક્યુલર રમતની વાત કરતું હોય તો એને એના ઇનપુટ્સ મળવા જોઈએ. હું માનું છું કે દેટ ઇઝ અ વેરી ગુડ થિંગ હેઝ હેપન એઝ ફાર એઝ ધીસ પ્રોગ્રામ ઇઝ કન્સર્ન. અને હું માનું છું કે એને હું એક પોઝિટિવ વેમાં જોઉં છું. ધ્વની जी बिल्कुल. विक्रम जी, फेंसिंग की जब बात हो रही है तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी रोमांचक ये कैसे मैम आप क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे? थी जो आज जी 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 प्लीज. बिल्कुल. विक्रम जी आज हम फेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितनी रोमांचक है ये रमत. कोई ऐसी बात की जो आज आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाह रहे हो? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि हमें ऐसी रोमांटिक चीजें सामने लानी चाहिए, तभी बच्चे खेलों के प्रति उत्सुक होते हैं. देखिए मैम, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इसका जवाब देने के लिए. 2-3 रोचक तथ्य हैं जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो बताने के लिए. सबसे पहले तो मैम आप लोगों को ये इनफैक्ट आपको पता है और सभी बच्चों को ये भी पता है कि फेंसिंग एक ऐसा खेल है जिसमें 48 मेडल्स हैं. 48 मेडल हैं एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप, और ओलंपिक्स में आपके 36 मेडल्स हैं. सबसे बड़ा रोमांचक तथ्य यह है कि एक ऐसा खेल है जिसमें 36 पदकों के लिए हम खेल रहे हैं. मैं दूसरे खेलों के खिलाफ नहीं हूं. जैसे अगर आप हॉकी खेल रहे हैं तो आप सिर्फ एक पदक जीत सकते हैं, लेकिन फेंसिंग एक ऐसा खेल है जिसमें आप 36 पदकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं. आप कहीं ना कहीं फिट हो सकते हैं. पहला सबसे बड़ा रोचक तथ्य तो यह है जिससे बच्चे मोटिवेट होकर गेम में आते हैं. दूसरा रोचक तथ्य यह है कि मैम जो फेंसिंग की तलवार है वो ओलंपिक खेलों में दूसरा सबसे तेज चलने वाली चीज है. शूटिंग के बाद, गोली के बाद फेंसिंग ओलंपिक खेलों में दूसरी, समर ओलंपिक खेलों में दूसरी सबसे तेज गेम है. ये दूसरा रोचक तथ्य है. तीसरा रोचक तथ्य ये है मैम फेंसिंग का, जो मैं थोड़े दिनों पहले किसी से बात भी कर रहा था कि 2004 ओलंपिक्स में जो ग्रीस में हुई थी, 2004 में एक यूएसए की एक बड़ी अच्छी लेडी फेंसर है, उनका नाम है मैरियन जेगनस. वो उस समय अराउंड 17 वर्ष के आसपास थी. तो जब हमारा फेंसिंग का ये नहीं होता कि किसी भी कंट्री से आप कोई भी जाके खेल लो, आपको एक पूरा साल एक टूर्नामेंट खेलने पड़ते हैं. आपकी एक रैंकिंग बनती है. उस रैंकिंग के आधार पे समझ लो पहले 60 या पहले 70 जो आदमी होते हैं पूरे, या खिलाड़ी होते हैं पूरे विश्व में, वो खेलने जाते हैं. तो मैरियन जेगनस का जो नंबर था वो 1 या 2 नंबर से ओलंपिक में जाने से रह गई. वो उन्होंने कोई बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीती थी. इनका नाम मैरियन जेगनस है, सैबर गेम खेलती है. ऐसा हुआ कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट की जो लड़की क्वालिफाई हुई थी, उनको इंजरी हुई और वो ओलंपिक्स में जाने से कुछ समय पहले तक वो ना जा पाई. मैरियन जेगनस को अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ से क्वालिफिकेशन मिला, अपग्रेड हुआ, समझिए कि इंजरी रिप्लेसमेंट हुई. और ये 17 साल की लड़की, उस समय इसका कोई सीनियर कैटेगरी में मेडल नहीं था. ये ओलंपिक्स में गई, सबसे लास्ट खिलाड़ी समझिए वो ओलंपिक्स में गई, और ओलंपिक्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, और उसके बाद उन्होंने इतिहास रच दिया और बहुत सी स्वर्ण पदक इन्होंने जीते. तो ऐसे कई रोचक तथ्य हैं. जैसे हमारी टीम है जिसमें अनिल जी ने अभी बोला कि हमारे गुजरात के एक लड़के हैं जो जूनियर कॉमनवेल्थ में मेडल जीत के आए हैं. तो जब पिछले साल 2018 में हमारी टीम जूनियर कॉमनवेल्थ खेलने गई थी इंग्लैंड में, तो सभी ने सोचा था कि कुछ नहीं है, ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हमारा पहले ऐसी थी 2-4 साल पहले की हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी. आप यकीन करेंगे हमारी टीम ने वहां पे 17 के 18 पदक जीते. इंग्लैंड से बिल्कुल, इंग्लैंड जो उस समय बल्कि ओलंपिक लेवल के फेंसर थे उनसे मात्र कुछ पॉइंट से रह के वो नंबर 2 पे आई. तो ये पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को एक पता लगा कि एक इंडिया है जो एक सोया हुआ शेर है, जो फेंसिंग में वो उठ के आ रहा है. नो आप में गुजरात के बारे में सबसे बड़ा रोचक तथ्य है. मैं गुजरात के साथ में एसोसिएटेड हूं, मैं वहां रहा भी हूं 2-3 साल. मैम गुजराती कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो जिसमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, एक पर्यावरण टाइप का एक माहौल बनता है जिसमें चीजें प्रॉस्पर होती हैं, जैसे अनिल जी ने कहा. और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है जो गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसीज है. एक हमारे डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है श्री संदीप प्रधान जी, इन्होंने गुजरात के मॉडल में पूरा स्पोर्ट्स का मॉडल सेटअप किया था. मैं अनिल से 100% इत्तेफाक रखता हूं कि हमारा आने वाला ओलंपियन शायद गुजरात से ही हो. रीजन ये है कि टैलेंट हर जगह होता है, लेकिन उस टैलेंट को एक शेप देना, एक लोहार की तरह उसको काट देके
एक रूप बना के करने में, उसमें बहुत सी जो सपोर्टिंग बेसिस होते हैं उनका सपोर्ट होता है, और गुजरात गवर्नमेंट वो बड़ी सबसे बड़ी सपोर्ट दे रही है। इनफैक्ट मैं अभी रिसर्च कर रहा था, इनफैक्ट गुजरात खेल कुंभ में जो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल चाइल्ड हैं, जिनको हम विकलांग कहते हैं, या दे हैव गॉट, आपके खेल कुंभ में उनकी एक अलग स्पर्धाएं होती हैं। इनफैक्ट जो मैं गुजरात में था, मैं हैरान रह गया देख के प्लानिंग का लेवल, कि गुजरात आई थिंक इंडिया में एक वाहिद कंट्री है, यहाँ पे एक बीच है द्वारका वाली साइड जो स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि लॉट मेनी पॉलिसीज आर इन प्लेस। गुजरात के लोगों में ये चीज है, दो स्किल है जो हमें ओलंपिक्स तक फेंसिंग के वो प्लेयर प्रोड्यूस कर सकती है। और अनिल जैसे कोच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भरत जी ठाकुर जैसे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मिलके, और मेरा ये मानना है कि हमारा अगला ओलंपियन शायद गुजरात से ही हो। थैंक यू जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, विक्रम जी ने यहाँ फेंसिंग से जुड़े काफी रोचक तथ्यों को रखा है, पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे जुड़े फेंसिंग से, कितनी बार इंडिया को रिप्रेजेंट करने के मौके आपको मिले हैं, आपकी यादें कौन सी है इस खेल के साथ जुड़ी हुई? हाँ जी, मैं कि विक्रम जी से मैं बहुत सहमत हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ और उनका आशा भी दिलाता हूँ विक्रम जी को कि शायद अगला ओलंपिक गुजरात से ही निकले। और उनका सपोर्ट रहा तो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, हम साथ में कई साल कैंप में रहे हैं, मैं और विक्रम अच्छे से जानते हैं हम। देखिए, मैं अभी 35 साल की उम्र है मेरी, और मेरा फेंसिंग का से जुड़ाव पिछले 27 साल से। तो महज मैं 8 साल की उम्र में फेंसिंग में आ गया था, और फेंसिंग की दुनिया में मेरा कदम रखवाने वाला मेरा बड़ा भाई, मेरा गुरु, जिन्होंने मुझे फेंसिंग में इंट्रोड्यूस कराया। और मेरे 27 साल के करियर में मैंने 36 नेशनल इंटरनेशनल में मेडल जीते हैं, और दूसरा 18 साल में अनबीटन चैंपियन रहा हूँ स्टेट लेवल पे कंटिन्यूसली। और दूसरा मेरा एक मुझे याद आता, सबसे पहले फर्स्ट मैं इंटरनेशनल खेलने गया था पोलैंड 2001 में वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो वहाँ हमारी टीम बहुत उत्साह से गई थी, हम बहुत अच्छा खेले, हमने ट्रेनिंग बड़ी अच्छी की थी। एनआईएस में पटियाला में कैंप लगा था, कोचेज अच्छे थे, ट्रेनिंग अच्छी कराई। लेकिन हमारा फर्स्ट टाइम था वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करने का। हम अच्छा खेले लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए जो हमें उम्मीद थी। नेक्स्ट टाइम पे फिर हमारा नेक्स्ट ईयर फिर कैंप लगा बुसान एशियन गेम 2002। विक्रम जी मेरे साथ ही थे कैंप में, हमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की, सिलेक्शन हुआ, जाने वाले थे, पर किसी कारणवश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टीम हमारी क्लियर नहीं थी, हम वहां जा नहीं पाए। नहीं तो हमारा कुछ अच्छा रिजल्ट होना था उस टाइम पे, विक्रम जी को अच्छे से पता है। उसके बाद फिर मैं दोबारा और एशियन चैंपियनशिप, ओपन एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में खेलना, में 11 में, वहां मेरे 2 मेडल थे। और उसके बाद कई मेरे एक्सपीरियंस है नेशनल के, इंटरनेशनल के। उसके बाद अब मैं चाहता हूँ, अभी मेरा जो इच्छा है कि जो मैं नहीं कर पाया इंटरनेशनल लेवल पे, मेरे बच्चे जरूर करेंगे। मैंने एक सपना पाल रखा अपने दिल में कि मुझे उस टॉप लेवल पे पहुंचना है, मैं नहीं तो मेरे बच्चे पहुंचेंगे, ओलंपिक तक जरूर जाएंगे। और उसके लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और करेंगे। और मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे, गुजरात के बच्चे 100% ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल में रिजल्ट देखा है इन बच्चों का, जो कुछ नहीं थे, हमने जीरो से शुरू करके हमने कहाँ तक पहुंचाए हैं इनको। और इसमें सबसे अच्छा रोल मैं बताता हूँ, हमारी जो गुजरात गवर्नमेंट है, एसएजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात, वो, और सबसे ज्यादा सपोर्टिव हमारी एसोसिएशन है, अमेचर फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ गुजरात। वो हर टाइम हर जगह हमें मिलते हैं, जो भी हम उनको बोलते रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इतने सारे बच्चे, इतना रॉ टैलेंट हमारे पास है। अब मैं बताता हूँ आपको, यकीनन हमारे नेशनल लेवल पे जो ऑल ओवर गुजरात में 100+ मेडल है नेशनल लेवल पे हमारे बच्चों के। अभी अभी लास्ट नेशनल में हमारी एक प्लेयर है, उसने नेशनल चैंपियन को हराया है, जो इंटरनेशनल उसको हरा के आई है। विक्रम जी को अच्छे से पता होगा उनका। और विक्रम ने मेरे को 2-3 बार बोला, विक्रम जी ने, भाई ये लड़की बहुत अच्छी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दो, ये अगर आने वाली नेशनल चैंपियन हो और इंटरनेशनल में जाएगी वो, है ना। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम उस लेवल तक लेके जाएंगे। हमारे पास स्पोर्ट अच्छा है, सब चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें पॉजिटिव हैं, हमारे बच्चों में टैलेंट बहुत ज्यादा है। और जो हम नहीं कर पाए मेरे बच्चे जरूर करेंगे, मैं ये उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ। जी बिल्कुल। विक्रम जी, आप भी इस खेल के साथ जुड़े हो, और साथ में आपने भी इस खेल को डेवलप करने के लिए काफी कुछ किया है, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करो। मैम, मैं तो पहले तो आपने जो अनिल ने बोला, मैं और अनिल इकट्ठे खेलते थे,
आप उसको हमारी बदकिस्मती कहिए, जहां समय की मार कहिए, उस समय हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी जैसी अभी गवर्नमेंट लेके आई है। स्पेशली मोदी गवर्नमेंट ने खेलो इंडिया चलाया है, मोदी जी की गवर्नमेंट ने गुजरात के फैसिलिटीज आई हैं। मैम, फेंसिंग का जैसे आपने अशोक जी ने पहले बताया है कि 70s में फेंसिंग बनी थी, और उसके बाद फेंसिंग में 1987 में स्पेशल एरिया गेम्स के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक बहुत लेवल पे फेंसिंग शुरू गई थी, बट वो समहाउ कुछ सक्सेसफुल नहीं हो गई, या कुछ 93-4 के आसपास वो कंसेप्ट खत्म हो गया, या इट डाइड इट्स ओन डेथ, बिकॉज उस समय हमारे पास फॉरेन कोचेस थे। इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में प्रॉपर ट्रेनिंग होती थी। कुछ मणिपुर और केरला के जो कलेरुपट्टू और उनके लोकल मार्शल आर्ट्स के बच्चे थे, उनको लाके ये गेम शुरू की गई थी। फिर धीरे धीरे फेंसिंग चलती रही, अनिल और हम पता है, क्योंकि साल में एक चैंपियनशिप जाते थे, क्योंकि एक ऐसा, आजकल आप मानेंगे कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको खेलना है तो आपको compete करना पड़ेगा, आपको अगले अपोनेंट को जानना पड़ेगा। अभी देखिए क्रिकेट गुजरात में क्यों इतना पॉपुलर हो गया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हैं, रोल मॉडल्स बने हैं। तो जो फेंसिंग का एक्चुअल जो सही टाइम शुरू हुआ वो समवेयर अराउंड 2006-2008 के आसपास शुरू हुआ, जब गवर्नमेंट ने सोचा कि इसमें 48 मेडल्स हैं, चांसेस हैं, और फेंसिंग का एक पुनर्जन्म हुआ। इनफैक्ट आप समझे, जब ये हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं श्री राजीव मेहता जी, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और बशीर अहमद खान हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी, और राजीव मेहता जी प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने खेल में कुछ बदलाव लाए, मिनिस्ट्री में जाके प्रेजेंटेशंस दी, अनिल जैसे लोगों को, अनिल के बड़े भाई अशोक जो इंडिया के इस समय बहुत अच्छे कोच हैं, इन लोगों को आगे लाया, और हमें प्रोत्साहन दिया, और हमें लोगों के सामने एक्सपोज किया। हमने वहां पे जाके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में माननीय संदीप प्रधान जी के पास बताया कि सर ये है, उनको ऑलरेडी पता था कि ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। तो जो पिछले 3-4 साल में जो फेंसिंग की जो एक आप समझे प्लेटफॉर्म बना है, मैं 100% श्योर हूं कि 2028 ओलंपिक्स में हम पक्का पोडियम फिनिश करेंगे। इसके अलावा मैम आपको और बताएं, गवर्नमेंट ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया मिलके 7 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल रहे हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इट्स ए टॉप ऑफ द क्रीम होगी, उसमें जो सारे स्टेट्स के अच्छे बच्चे होंगे वहां पे ट्रेनिंग करेंगे। ये 7 फर्स्ट फेज में 3 खुल रहे हैं, एक पटियाला खुल रहा है NIS, एक साई सेंटर है जो नदियाड है गुजरात गवर्नमेंट का, वहां खुल रहा है, और एक आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे खुल रहा है फर्स्ट फेज में 2021 में। इसकी सारी कार्रवाई हो चुकी है। यहाँ पे अराउंड 200, 300 बच्चों को रखा जाएगा। प्लस इन सेंटर्स को फीडिंग करने के लिए ऑल ओवर इंडिया में अराउंड 100 डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट की जाएगी। तो आप अगर सोचें कि फेंसिंग का स्तर बहुत ऊंचा है, और गुजरात में मेरा ये मानना है मैम, हाँ जी मैम, गुजरात में मेरा मानना है कि जो एक बिकॉज जनरली मैं इसको बोलूंगा, गुजरातीज आर वेरी शार्प इन माइंड, और फेंसिंग वेरी शार्प इन माइंड गेम है। यहाँ पे आपको गेम के साथ साथ कॉन्टिन्यूसली सो मेनी डिसीजंस यू हैव टू टेक टुगेदर। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जैसे भारत में गुजरात का हर तरह से बहुत बड़ा योगदान है, फेंसिंग में भी गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, जो भारत आने वाले समय में देखेगा। थैंक यू જી બિલકુલ. તો દર્શક મિત્રો, ખાસ કરી અને રોમાંચ અને સાહસથી ભરેલી ફેન્સિંગ એટલે કે તલવારબાજીની રમત વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને આ ચર્ચામાં અત્યારે મારી સાથે જોડાયા હતા વિક્રમસિંહ જામવાલ, સાથે અનિલ ખત્રી અને સ્પોર્ટ્સ એક્સપર્ટ અશોક મિસ્ત્રી. તમામે તમામ મહેમાનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. તો દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ શોમાં અત્યારે બસ આટલું. રજા આપશો. નમસ્કાર.